Hello students, good morning everyone. Dear students of class 2nd, how are you all? I hope you all are fine. Students, now today I am here with the English course book, and as you remember, which chapter is running now? Chapter 2nd is running out. Chapter 2nd exercises is going on still. Okay, and as well as yesterday explain about the uses of one and many, and there was also some rules to change our words from singular to plural, from one to many. Okay, so I hope you all remember about studies explanation. Okay, our definition. And students, now study we have completed this type of exercises. You have some remain exercises which we will do that today. Okay, now I have done these all the answers. It was in your homework, so those who have done, they have to match their answer from today's worksheet. जिन लोगों ने अपने आंसर्स को कर लिया अपने बुक में, वो लोग अपने आंसर्स को इस वर्कशीट के हेल्प से मैच कर लेंगे. एंड इफ़ यू हैव टू डू एनी करेक्शन, यू मस्ट हैव टू डू दैट इन योर बुक. क्लियर? ओके, तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं. वन हैंकी यू हैव इज इन सिंगुलर. देन जैसे कि एक्सप्लेन किया गया था कि जब भी हमारा वाई लेटर जो है, बिफोर दैट अगर आपका कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम वाई को क्या करते हैं, रिमूव करके इंस्टीड ऑफ वाई आई ई एस को ऐड करते हैं. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐड किया गया है हैंकीज. ठीक है. नेक्स्ट बेबी, सेम थिंग्स, आई ई एस, बेबीज. नेक्स्ट लोरी, same things, lorries. Y has been removed, and instead of this, replace of this IES is added. Okay. Next, keys. You can see there's added only S because before your Y letter there's vowel. Means in this type of words we have to add only S. Clear? Next, cherry. There'll be your cherries. We will add here IES. Means cherries. Next, one tray, that means two trays. Next, one toy means two toys because these are your vowel sound. Okay, vowel word. इसलिए यहाँ पे इस का ऐड हुआ है ना, इसको हम लोगों ने ऐड किया है, इसका यूज़ किया गया है. ठीक है. अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. इट्स अबाउट योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. इट्स अबाउट योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. And in this building blocks we will learn about the naming words. क्या learn करेंगे? Naming words. So already you all have learned and read about the naming words. Naming words are called the nouns also. Naming words are words that name people, places, animals and things. Naming words naming words जो होते हैं किसके नेम होते हैं? People के नेम होते हैं, places के नेम होते हैं, animals के, and things के नेम भी हो सकते हैं. Like आपके naming words हैं वासु, पीपल नेम, रोड थिंग्स नेम, रोड आपका जो है वो प्लेस नेम, प्लेट थिंग्स नेम, डोसा थिंग्स नेम, किटी आपका एनिमल में आ जाएगा, या आप उसको एनी पीपल नेम भी कर सकते हैं. इंडिया आपका इंडिया आपका जो है वो प्लेस में हो जाएगा. ठीक है ना. कंट्री, विलेज, सिटी, स्कूल, आगरा, चार मीनार, दीज ऑल आर योर नेमिंग वर्ड्स. क्लियर? अब देखिए इन नेमिंग वर्ड्स में हमें क्या रीड करना है. वी हैव टू रीड अबाउट द कॉमन नाउन and second one proper noun. So let's come to read about the common noun, common naming words. And what are the common naming words? Common naming words are names that apply to people, places, animals and things in general. Means common noun में जो भी things आपकी होती है वो general में होती है, generally होती है, उसको हम generally में use करते हैं. We will not use that word for any particular person or particular thing. ठीक है ना. specific चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, उसमें सब कुछ जनरल होता है. लाइक आपका क्या है? सिटी. सिटी है ना, इसमें ऑल सिटीज़ यू कैन राइट डाउन और यू कैन गेट एनी सिटी नेम. कोई पार्टिकुलरिटी नहीं, स्पेसिफिक सिटी नेम नहीं है. कार है, सो ऑल टाइप्स ऑफ कार शुड बी देयर. स्कूल है, ऑल स्कूल्स. ओके. नेक्स्ट वन इज अबाउट यू हैव योर प्रॉपर नेमिंग वर्ड. प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स आर ओके. प्रॉपर नाउन आपका है. प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स स्पेसिफिक to one particular person
means in proper noun we will get our naming words like this specific, and that can be your particular person, particular place, particular animal or things. These also include days of the week, मीन्स जो भी डेज ऑफ द वीक होते हैं ना, और नेम्स ऑफ द मंथ होते हैं ना, और जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन्स में राइट होते हैं, ठीक है ना। इसको हम प्रॉपर नाउन में राइट करते हैं। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जो है दैट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मीन्स वेन एवर वी राइट एनी सेंटेंस इन अ प्रॉपर नाउन देन वी ऑलवेज स्टार्ट आवर words with a capital letter. And in common noun mostly we used to start our word with what? Small, okay, or small letter, ठीक है ना। स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है आपका, और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, वासु। वासु जो है हैज़ द नेम ऑफ समवंस, वासु किसी का नेम है ना, एंड इट इज़ द नेम अबाउट एनी पर्टिकुलर बॉय, एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है। इंडिया है, ये आपका पर्टिकुलर कंट्री है, वन पर्टिकुलर कंट्री है। आगरा है, ये आपका एक स्पेसिफिक सिटी है। अगर यहाँ हम सिटी कर देते हैं मीन्स आपका ये कॉमन नाउन में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे किसी सिटी का नेम लेते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक सिटी होगा, पर्टिकुलर सिटी होगा। चार मीनार है, ये आपका एक पर्टिकुलर फेमस स्पेसिफिक मोन्यूमेंट है, ठीक है ना। मीन्स इसमें जो भी प्लेसेस हैं, नेम है, वो आपका पर्टिकुलर में दिया हुआ है, स्पेसिफिक में दिया हुआ, उसका नेम दिया होगा, वो जनरल में नहीं आएंगी। मार्च है, ये आपका एक पर्टिकुलर मंथ है, मंथ ऑफ द नेम एंड डेज ऑफ द वीक, और क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं और फेस्टिवल्स नेम जो हैं सारे किस में आते हैं? किस में आते हैं? ये आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पेज नंबर 22 रीड कर रहे थे। नाउ वी विल मूव टू दी पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 को देखते हैं हम लोग अब। सो एवरीवन ओपन दी पेज नंबर 23, ओपन कर लीजिए सब अपने बुक में। क्लियर? अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आपका एक एक्सरसाइज है। सो लेट्स कम टू सी द एक्सरसाइज। अंडरलाइन द कॉमन नेमिंग वर्ड्स एंड सर्कल द प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स इन दी सेंटेंसेज। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। Now what you have to do in this exercise? You have to read these sentences at once carefully, and then whatever common noun or common naming words you will get from this sentence, इसमें जो भी आपको common noun के sentences मिलेंगे, words मिलेंगे, उनको आपको underline करना है, ठीक है। underline करेंगे, और जो भी आपके words proper naming words में होंगे then you have to what? You have to circle to the all proper naming words, ठीक है। देखिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, लास्ट संडे। यहाँ संडे देखिए, संडे इज द प्रॉपर और स्पेसिफिक व्हाट? वीक नेम, वीक का नेम है ना। और ये संडे जो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट भी हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नेमिंग वर्ड, ठीक है। और देखिए जू है, तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जू का नेम नहीं दिया हुआ है, किसी जू प्लेस का नेम नहीं, ऐसे जू दिया हुआ है। तो जू तो कहीं किसी भी सिटी का जू हो सकता है, किसी भी प्लेस का जू हो सकता है, तो ये आपके जनरल में है, ठीक है ना। ये वर्ड आपका जनरल में है, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये आपका कॉमन नेमिंग वर्ड में है। नेक्स्ट यू हैव पोस्टमैन, ओके। दी पोस्टमैन, आपका जो पोस्टमैन है वो देखिए, पोस्टमैन तो है, सो पोस्टमैन कैन बी एनी वन, there is no any particular name of the postman, that's why also there is the underline about the common noun। and later आपका देखिए, लेटर भी जो है वो लेटर आपका पर्टिकुलर नहीं, स्पेसिफिक लेटर नहीं, इसलिए इसको भी अंडरलाइन किया गया है, इट्स ऑल्सो इन कॉमन नाउन। ब्रेड एंड चीज, दिस ऑल आर योर व्हाट? क्या है ये? आपका कॉमन नाउन में है, ठीक है, और इसको अंडरलाइन भी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अम्मा, प्रॉपर नाउन में आपका जो भी वर्ड है वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बी रिमेंबर अबाउट इट। अम्मा जो है वो आपके प्रॉपर नाउन में है। एंड डोसाज देखिए, डोसा इट्स फ्रॉम स्मॉल लेटर ना, एंड इट्स इन योर कॉमन नेमिंग वर्ड, यहाँ पे आपका अंडरलाइन है। नेक्स्ट गोट यू हैव, goat you have, that's in the common noun. Field are also in common noun. Next one, Vasu and Prabhu, these two names are the specific and particular boy's name, and it has also started from your capital letter.
देन इट इज़ इन सर्कल बिकॉज दीज आर इन प्रॉपर नाउन. ठीक है, ट्विंस है आपका कॉमन नाउन. मिली, देयर इज अ पर्टिकुलर गर्ल्स नेम मिली, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन. एंड देन सिस्टर कैन बी हर नेम शुड बी एनीथिंग, सिस्टर विल बी इन योर कॉमन नाउन. इंडिया in proper noun, country in common noun. Uncle's name is not there, only uncle is there, so uncle will be in common noun. And Nagpur, there is the specific place Nagpur, that's why it's your what, proper noun. रवि भी आपका स्पेसिफिक नेम है. ठीक है, पैरट है, पैरट आपका ये कॉमन नाउन में है क्योंकि कोई नेम नहीं है पैरट का. पॉली जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है. ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई होप टिल हियर यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सरसाइज. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है. लेट्स ट्राई 9. फाइंड 10 नेमिंग वर्ड इन दिस स्टोरी, डबल मिडल. नाउ अंडरलाइन द प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स. आपको क्या करना है, आपने जो भी अभी अपने बुक को रीड किया है, स्टोरी रीड किया है डबल मिडल, तो आपने स्टोरी में से आपको 10 नेमिंग वर्ड फाइंड करना है और अंडरलाइन दी प्रॉपर नाउन. और जो भी नेमिंग वर्ड पहले आप फाइंड करके राइट कर लेंगे इन सारे ब्लैंक में, और उसके बाद जो भी वर्ड आपका नेमिंग वर्ड जो है प्रॉपर नाउन में होगा उसको आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, और जो कॉमन नाउन में होगा ऐसे आप उसको लीव कर देंगे, उसको ओनली आपको राइट करना है, और जो प्रॉपर नाउन का होगा उसको आप अंडरलाइन कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ okay students, so now let's start to do your today's work. Do it in your book, and after doing your book, send your work through the school application to me. Okay, now thank you, have a nice day.